Assalamualaikum everyone. I'm taking the electronic concept of class 12 physics. Now, I've already discussed the chapter at Rajbagh, but the Khanyar people are very far behind, and therefore I shall be starting again. Now, for the electronics part, first of all, let me take up matter. All of you know what matter is, and you know the various states of the matter. But when we talk about the three dominant states of matter, we have got the solids, we have got the liquids, and then we have got the gases. Regarding gases, you must remember this thing. All the gases in general are insulators. However, if you ionize a gas, it is the positive ions which conduct. Not the negative ions, not the electrons, but remember the positive ions. In case of liquids, when you talk about liquids, it is the cation as well as the anion which helps in the conduction. In general, you must have seen those Leclanche cells and all, and electrolysis part, inshallah, you'll take up in chemistry. You'll see the cations and the anions, they generally help in the conduction. However, when we talk about solids, in solids, we have got three classes. We have got the conductors, we have got the insulators. I hope you are well aware of these two. And then we have got one more important class which are called as the semiconductors. Our main concern will be this, but little bit information regarding conductors and insulators. Regarding conductors, you must remember this thing, that conductors in general possess electrons which have a random motion. Random motion की वजह से होता क्या है? We do not get currents, because by the definition of current, it is definitely the motion of the electrons in a particular direction. Now, in order to make currents, what do? You apply a battery. You apply some potential difference. What does the battery do? Does it supply the electrons? No. It supplies the energy. It supplies the energy in the form of electric field. And when this energy, when this electric field is acted on the electrons, what happens? आपने electrostatics पढ़ा है. You know that when a charge is kept inside an electric field, it experiences a force F equal to QE. अब समझ लो यहाँ पे, जब आपने एक कंडक्टर की बात की, आपके पास एक कंडक्टर है, आपके इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपने रैंडम मोशन में थे, लेकिन जब आपने एक बैटरी सप्लाई कर दी, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस इसको सप्लाई करा दी, व्हाट हैपेंस? ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? शाबाश, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा. नाउ अभी इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, समझ लो मेरी बात. अब इलेक्ट्रॉन जो है, इन पे जो फोर्स लगेगा, that will be equal to, shabash, F equal to minus EE. That means they'll experience a force against the electric field. Therefore, if the direction of the electric field is this, the electrons are going to experience a force in the opposite direction. Therefore, the direction of the motion, the direction of the force will be this. So what are you seeing? You're seeing that these electrons have a tendency to move from the negative terminal towards the positive terminal, and therefore this is the actual current. हमने जो अभी तक पढ़ा है that electrons move from positive terminal to negative terminal, नहीं बच्चा, that is just the conventional concept. That is just to make you understand that everything flows from high potential to low potential. लेकिन अगर electrons की बात करें, electrons का high potential दरअसल negative terminal पे है, and therefore in the terminology of the conventional concept, I can say that when electric field is supplied, the electrons move from low potential to the high potential. समझ गए कि नहीं? अगर आप इस चीज की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन्स अब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चले गए, अब ये चीज समझे, ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी कर्नल्स जो इस मेटलिक कंडक्टर में है, उन कर्नल्स के साथ टकराएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. Therefore, it will lead to collisions, and these collisions are the basic cause of the resistance. So,
It is due to these collisions, the collisions which lead to the resistance. एंड आपने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है. रेजिस्टेंस आपने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एंड दिस रो इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. ठीक है. For conductors, remember, rho possesses a value of 10 raised per minus 6 to 10 raised per minus 8. या 10 raised per minus 7 to 10 raised per minus 8 ओम मीटर. नाउ रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो मैंने आपको कहा रेजिस्टेंस जो है, जो इन कंडक्टर्स में आ जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. सी, when electrons are moving, they will definitely collide with the other electrons. They will definitely collide with the other kernels, and due to this collision, a stopping force, a retardation occurs, and you call that as resistance. Or the classical concept may also be shown as, we can have a well. We have got a crust, we have got a trough, or this may be called as a well. इलेक्ट्रॉन जब चलने की कोशिश करता है ना, जब इस पे फोर्स लगता है ना, तो समझिए इलेक्ट्रॉन यहां पे था. इस यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन जो था बड़ा आराम से चल रहा था, कोई कोलिजन नहीं था. लेकिन वंस इट एंटर्स द वेल, व्हाट हैपेंस? अब इसको ऊपर जाना था ना, ऊपर जाने के लिए इसको क्षमता नहीं है. ऊपर जाने के लिए इसको जो यहां से गेन हो रही थी एनर्जी, जो यहां की पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक में, यहां पर इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक, लेकिन वो काइनेटिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है. क्यों? बिकॉज इट इज क्लाइंबिंग द हिल. एंड इस हिल को क्लाइंब करने की वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट ये इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर लेता है. देयरफॉर इट्स रिटार्डेशन ऑकर्स. एंड दिस पार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर बी causes the resistance in the electrons. जब ये इलेक्ट्रॉन फिर टॉप पे आ जाएगा, अगेन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड अगेन इट विल डेफिनेटली मूव विद द फ्लो, एंड देयरफॉर इस वाले टाइम में इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है. लेकिन इस वाले हिस्से में इसको कोलिजन्स मिलते हैं, और कोलिजन्स की वजह से इट इज नॉट एबल टू मूव. समझ गए कि नहीं? अब आप समझिए, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन की रिटार्डेशन है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, और मैं कह सकता हूं ये रिलैक्स कर रहा है. बाकी टाइम पे कोलिजन्स, बाकी टाइम पे रिटार्डेशन, लेकिन इतने वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है. जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम. कैसे सुना? ये रिलैक्सेशन टाइम इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टाउ इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी स्टडीइंग करंट इलेक्ट्रिसिटी. अभी याद रखना. तो ये टाउ जो है, जितना ज्यादा ये टाउ होगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन उतना तेज चलेगा, है कि नहीं? अब आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं वापस. द फोर्स विच इज बीइंग एक्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू माइनस ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. नाउ यहां पर एक कंसेप्ट में दे सकता हूं. नाउ वी नो दैट कंसेप्ट आगे ले रहे हैं. एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. ठीक. एफ के बदले मैं लिख सकता हूं एम इंटू ए, द एक्सेलरेशन. दैट विल बी इक्वल टू शाबाश माइनस ई इंटू, और आई कैन से दैट एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एक्सेलरेशन विद विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट द रिलैक्सेशन टाइम, इट इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम. नाउ आपने शायद कंसेप्ट मैकेनिक्स से लिया होगा. अगर एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस टाइम के लिए एक्सेलरेशन हो रही है, ऑब्वियसली यू गेट वेलोसिटी, है कि नहीं? नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस एक्सेलरेशन बाय टाइम, कौन सा टाइम? लेकिन रिलैक्सेशन टाइम. ये रिलैक्सेशन टाइम है, वो टाइम है जिस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है. देयरफॉर अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं इस चीज को हटाते हैं, इस चीज को भी हटाता हूं. अगर मैं अब एक्सेलरेशन को टाउ से मल्टीप्लाई करता, वो क्या आएगा? माइनस ई अपॉन एम टाउ. दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन रिमेंबर ये बहुत ही कम वेलोसिटी.
अगर इस रूम की बात करें या अगर हम पल्स के रूम की बात करें, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, जो लेंथ है ना, जिस लेंथ में हम बैठा करते थे वहां, उस लेंथ को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन 24 घंटे देगा। बहुत कम वेलोसिटी। इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ते हैं, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फिर आखिर करंट कंडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी ये कंसेप्ट ले लो। कंडक्टर्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सेमीकंडक्टर्स में जब मुझे कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत होगी तो मैं इन चीजों की मदद ले रहा हूं। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द कंसेप्ट स्लाइटली लिटिल डीपर इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ना इस चीज को समझ लें आप कि हमने कंडक्टर्स देखे, हमने कहा कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट नहीं होगी, लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी को कनेक्ट करने की वजह से शाबाश इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आती है। इलेक्ट्रॉन ने बैटरी सप्लाई करा क्या, बैटरी से सिर्फ एनर्जी सप्लाई करा। ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करा उस नजर थे, इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी गेन करा पका 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 पका, लेकिन ड्यू टू कोलिजन्स जब ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचने वाला होता है, देख लो क्या होता है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, रुक गया। इस रुकने के बाद बैटरी के पास और पहुंच गया, बैटरी इसको फिर से एनर्जी देगी, फिर से चलेगा तेज तेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, अब हमने ये चीज सीखी। ये भी रेजिस्टिविटी जनरली 10⁻⁷ to 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ठीक है, अच्छा एक कंसेप्ट और टेम्परेचर के रिगार्डिंग फॉर द रेजिस्टेंस। मैं इस हटाता हूं सब कुछ। रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर, आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन्स जल्दी जल्दी करेंगे कि नहीं? कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मुझे आप बताओ इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? देखो कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा, मुझे आप बताएं इलेक्ट्रॉन को कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस को क्या होगा? मैंने कहा था रेजिस्टेंस इज जस्ट द ऑपोजिशन टू द फ्लो। कितना जल्दी वो क्रस्ट से वेल की तरफ जाने वाला होगा। जो हमने देखा अभी, इस जगह से इस जगह तक अगर ये रास्ते बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रही है इलेक्ट्रॉन की मोशन को, वो रेजिस्टेंस दरअसल बढ़ रही है कि नहीं? तो देयरफॉर यू कैन से दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन केस ऑफ कंडक्टर्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. So we have got a general mathematical relation as well. Remember, the resistance at a particular temperature, it is equal to R naught, the resistance at a 0 degree Celsius, into 1 plus alpha R naught, the resistance at 0 degree alpha. This is called as the thermal coefficient of resistance. Or you may say that 1 degree Celsius से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगी? ठीक है। Now if you plot a graph, if you plot a graph for this relationship, you can see that RT is equal to R naught plus R naught alpha T, है कि नहीं? Y is equal to mx plus c. Therefore, it will be a straight line, and the graph will be somewhat like this with an intercept, of course. So इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है? What do you mean by the intercept equal to R naught? Slope alpha R naught. This is RT and this is temperature. But remember, this is temperature on the Celsius scale. ठीक है? देखो ये समझ लो, टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कब नहीं है आप देख लो, समझ लो। ये ग्राफ अगर मैं पीछे प्रोड्यूस कर लूं,
इस चीज को जीरो होने के लिए दिस प्लस दिस शुड बी जीरो, है कि नहीं? इसका मतलब इसका वैल्यू तो है कुछ ऑब्वियसली, फिर वो ये वाला सारा जो है नेगेटिव आना चाहिए। तो बाय इंटरपोलेशन यू कैन जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टेम्परेचर एट विच दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है? एंड रिमेंबर इन जनरल देयर इज अ टेम्परेचर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम वी से दैट इट इज जीरो, दैट बिकॉज एवरी मोशन सीजेस, everything at a 0 degree Kelvin is an insulator. Remember this thing. Okay. इसके बाद दो चीजें और बतानी है। एक चीज ये बतानी है कि आपने शायद ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीख लिया। हाँ, अब एक और चीज है, दैट इज मोबिलिटी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये टर्म्स बिकॉज आगे चल के मुझे टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत भी लगेगी और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये अभी आप याद रख लें। One term which is associated with the chapter in the coming up classes is mobility. What do you mean by mobility? Remember, mobility, it is nothing but drift velocity per unit electric field. अभी हमने drift velocity सीख ली। drift velocity एक ऐसी velocity है जो इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर करते हैं जब एक पोटेंशियल डिफरेंस आप सप्लाई करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद चलने लगता है, लेकिन मैंने आपको कहा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। ठीक है? तो आप समझिए मोबिलिटी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट टेल्स यू हाउ इजीली कैन एन इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड अ कंडक्टर। सो इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? इसके बाद एक और चीज जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, द रिलेशनशिप, द जनरल रिलेशनशिप ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इज दैट करंट it is equal to Vn, where V is the drift velocity, Vd ANE, where A is the cross-sectional area of the conductor, N the number of electrons per unit length, and electronic charge E. ठीक है? ये दो रिलेशंस इंशाल्लाह हमें आगे भी जरूरत लगेगी, तो प्लीज ये याद रख लेना। ठीक है? ओके, सो इन शॉर्ट हमने सीख लिया कंडक्टर्स के बारे में। हमने ये देख लिया कि रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ क्या होता है, हमने ग्राफ्स देखे और हमने एक देखा कि इलेक्ट्रॉन जनरली मूव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ करते हैं। ठीक है? तो आई होप ये इतना काफी है। इंशाल्लाह हम आगे चल के देख लेते हैं कि और कुछ जरूरत, मुझे नहीं लगता और कुछ जरूरत पड़ेगा, बस ये चीज जरूरत थी तो बता दी। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, वी टॉक अबाउट दी इंसुलेटर्स। ना इंसुलेटर्स की बात अगर हम करें, इंसुलेटर्स की बात अगर हम करें तो रिगार्डिंग इंसुलेटर्स, you must remember this thing that in general insulators always show zero currents. They always show zero currents. There are cases when you can make an insulator to conduct current, मगर उसके लिए जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, जो एनर्जी देगा उन इलेक्ट्रॉन्स को। देखो, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हर कोई चीज बनी हुई है, चाहे आपका डायमंड हो, चाहे आपका ग्राफाइट हो, चाहे आपका आयरन हो, इस सब में इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मसला यह है कि डायमंड क्या शुड बिहेव कर रहा है एज एन इंसुलेटर, आयरन क्या शुड बिहेव कर रहा है एज अ कंडक्टर। इंशाल्लाह आगे चल के जब हम एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द बैंड थ्योरी, आपको तब भी समझ आ जाएगा। लेकिन अभी मैं जो ये मोटा मोटा कंसेप्ट दे रहा हूं, एक क्रक्स में नट शेल में बता रहा हूं, ये है कि इंसुलेटर्स में जनरली जीरो करंट्स होती है, और अगर आप करंट चलाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आप चला सकते हैं, उन करंट्स को चलाने के लिए जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, जो आपको बैटरी चाहिए ना, उस बैटरी, उस पोटेंशियल डिफरेंस, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है। एंड प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू सप्लाई दैट वोल्टेज, टू सप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देयरफॉर बीइंग वेरी अनइकोनॉमिकल, वी से दैट भाई इस चीज में करंट नहीं चलेगी, लेट इट बी एन इंसुलेटर। समझ गए कि नहीं? अगर मैं इस चीज को आगे लूं, resistivity of insulators is generally 10 raised per 5 ohm meter. अभी आपने देखा 10 raised per -7 to 10 raised per -8 ohm meter for conductors। देखो माइनस है ऊपर,
लेकिन यहां पे देखो पॉजिटिव वैल्यू 10⁵ ओम मीटर, देयरफॉर इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। समझ गए कि नहीं? एक चीज। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं डायमंड की बात करता हूं। डायमंड, आपको पता है अगर आप डायमंड में एक 10 सेंटीमीटर स्लैब हम लेते हैं, 10 सेंटीमीटर स्लैब थिक डायमंड की, पता है आपको कितना वोल्टेज लगेगा? 10⁶ वोल्ट लगा, ताकि डायमंड करे इलेक्ट्रॉन्स और योर। ठीक है, मगर इस चीज के देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला होगा दैट विल बी 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। कन्वर्ट कर दो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज वोल्टेज बाय डिस्टेंस, तो 10⁶ डिवाइडेड बाय 10 मगर सेंटीमीटर है, एंड देयरफॉर क्या आएगा 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए इतनी वोल्टेज चाहिए, एंड प्रैक्टिकली इट इज वेरी इम्पॉसिबल। ठीक, and therefore we do not consider the currents to be carried in diamond or in general in some other insulator। ठीक है, so insulators में मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा है, 10⁻7 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। नाउ आई कम टू द real part which I have to deal with, that is this semiconductor। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो आप ये चीज समझ लीजिए कि वर्ड खुद आपको सजेस्ट करेगा सेमी कंडक्टर। इसका मतलब दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस दे डू कंडक्ट, मगर उनकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है देखो दैट इज between the conductors and the insulators। ठीक है, and I should tell you this thing that इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इनकी कंडक्ट करने की क्षमता है ना, it has no practical use, it doesn't have any practical use। ठीक, क्यों? अब देख लीजिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की बात करूं, पीरियड टेबल याद होगा, सीसी जीसन पब, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सब कार्बन के बगैर जर्मेनियम सिलिकॉन। ठीक है, जो यहां पर है मेटलाइट्स जो आपके हैं, दे आर जनरली सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन इज शोज अ कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻13 टाइम्स दैट ऑफ क्वार्टज। कहीं आपकी गड़ियों पे लिखा होता है क्वार्टज। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करूं, इसका कंपैरिजन करूं कॉपर के साथ, इट इज 1/10⁻11 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर। तो आप समझ लीजिए सेमीकंडक्टर शोज वेरिएबल कंडक्टिविटीज। वेरिएबल मतलब इन कंपैरिजन टू क्वार्टज 10⁻13 टाइम्स, क्वार्टज बीइंग एन इंसुलेटर एंड कॉपर बीइंग अ वेरी गुड बेस्ट कंडक्टर, यह पर्चु विशांत हुई 1/10⁻11। सो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है कि भाई ना मैं इंसुलेटर जैसी रेजिस्टेंस ऑफर करूंगा, ना मैं कंडक्टर जैसा फ्लो ऑफर करूंगा, मैं दरमियानी हूं। समझ गए कि नहीं? दूसरी चीज जो आप याद रखेंगे वो ये कि सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस जो होती है, जो हमने अभी देखा फॉर इन केस ऑफ कंडक्टर्स, अगर हम इनकी रेजिस्टेंस देखें, इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, इनकी रेजिस्टेंस घटती। ठीक है, इंशाल्लाह आगे चल के रिलेशंस भी दे दूंगा, जिस रिलेशन की बुनियाद पर आपका एक सेमीकंडक्टर काम करेगा विद टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अभी याद रख लो रेजिस्टेंस घटती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है। उसकी वजह ये कि इसका अल्फा जो है, पिछले वाले केस में मैंने कहा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये अल्फा जो है कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक, लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स दिस अल्फा इज नेगेटिव, एंड देयरफॉर जब ये नेगेटिव होगा, 1 में से कोई चीज निकालनी है वो कम हो जाएगा, एंड दिस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। देयरफॉर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंसेस घटती है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं अगले क्लास में ये बता दूंगा कि जो हमारे कंडक्टिविटीज का जो दायरा है, जो हमारे जनरल सॉलिड्स है, जो हमने कहा कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, अब सेमीकंडक्टर्स, विल ट्राई टू सी कि भाई ठीक है हमने समझ लिया कि ये चीजें हो रही है,
लेकिन एक सेमीकंडक्टर में आप करंट चलाएंगे कैसे? एक कंडक्टर में ऐसा क्या है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स बड़ा जल्दी चल रहे हैं? इंसुलेटर में ऐसा क्या है कि आपको इतना ज्यादा वोल्टेज देना पड़ रहा है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ रहा है और वो चल रहे हैं? और आप जब इनकी बात कर रहे हो सेमीकंडक्टर से, आप कह रहे हो इनके दरमियानी कंडक्टिविटी से। तो इस चीज को समझने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो विद द बैंड थ्योरी, एंड इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द बैंड थ्योरी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।